So let's start the class. Those who joined late may continue from where they start. Okay. So today we are starting with this topic. We are continuing with the April current affairs. Okay. So our topic is open source seeds. So what is this? Here it simply asks for a pledge that an individual won't restrict others' use of seeds or derivatives by patents or other means. हमने देखा है कि जो hybrid variety of seeds है, hybrid seeds होते हैं, the big companies, they kind of get that patented. Okay, वो patent करा लेते हैं, and then every year the farmers have to buy new seeds. That's the problem. So India में the open source seeds initiative, ठीक है, the Hyderabad based Center for Sustainable Agriculture CSA, ठीक है, हैदराबाद बेस्ड है, सेंटर फॉर सस्टेनेबल एग्रीकल्चर, पार्ट ऑफ द अपना बीज नेटवर्क. अपना बीज मतलब you can use your own seeds. You don't necessarily need to buy from the those big organizations that get it patented. They developed a model. So what model it was? With the help of FPOs. आपको पता होना चाहिए कि जो there are farmer producer organizations that kind of lead the agenda for the farmers associations. So this will be done in a PPP मोड, ठीक है, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप. इसमें होगा क्या? फर्स्ट टाइम अ सीड दैट इज अ न्यू हीट रेजिस्टेंट व्हीट वैरायटी HD3385, ये हमने पहले भी पढ़ चुके हैं कि HD3385, what if it comes in news? Recently something called HD3385 was in news. What is it? So it is a heat resistant wheat variety, ठीक है. So developed by the government. गवर्नमेंट मतलब IARI, इंडियन एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, IARI. So it is being sold by a private company reaching large number of people. तो just understand these things कि पहले तो आपको ये समझना कि open source seeds policy का मतलब क्या है and what is the initiative, which organization has taken that up. और इंडिया में अपना बीज नेटवर्क का ये सब पार्ट है. फिर PPP मोड में होगा. Then what is this HD3385? It's a kind of a heat resistant wheat variety produced by IARI. Next we have the Food Conservation Amendment Bill 2023. ठीक है, ये लोकसभा में लेके आए, हमने पहले भी पढ़ा है. इसमें क्या क्या है, लेट्स सी. पहला है कि द बिल रिस्ट्रिक्ट्स एक्टिविटीज इन द फॉरेस्ट. ठीक है, रिस्ट्रिक्ट्स द डी रिजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट. ये भी टॉकिंग अबाउट द 1980 बिल. ओके, यूज ऑफ फॉरेस्ट लैंड फॉर नॉन फॉरेस्ट पर्पसेस. ठीक है, फिर क्या है, सर्टन स्पेशल एक्टिविटीज. किस तरह की एक्टिविटीज? कंजर्वेशन, मैनेजमेंट, development of forest and wildlife, that will be excluded from the non-forest purposes. तो इन एक्टिविटीज को नॉन फॉरेस्ट एक्टिविटीज में काउंट नहीं किया जाएगा. ठीक है, ठीक है. उसमें फिर कुछ और एक्टिविटीज इस बार ऐड कर दी इन्होंने. कौन कौन सी हैं वो एक्टिविटीज? zoos and safaris under WLPA 1972, that is now also coming under non-forest activities. Ecotourism activities, silvicultural operations. ठीक है. Then you have land under purview. The bill provides two types of land will be under the purview of the act. What type of land? Number one, the land declared or notified as forest under Indian Forest Act 1927. Okay. Next, we have land not covered in the first category but notified as a forest on or after 1980, October 25. Now, what are the other exempted categories of land? Okay. The bill exempts certain type of land from provisions of the act, such as forest land along a rail line और public road. ये हम पहले पढ़ चुके हैं, अगर आपको याद हो थोड़ा सा. Land situated within 100 kilometer long international borders, ये भी exempted है. Land up to 10 hectares proposed to be constructed, used for constructing security related infrastructure. तो ये 2-3 categories of land है जो. So this is going to be brought under this. Just wait for a second. Priyanshu, are you following where we are going? Yes, sir. Recently joined, sir. Yeah. Are you able to follow now? थोड़ा सा, yeah. Should I go back and restart? समझ आ जाएगा ना?
हाँ सर, समझ में आ रही है। ठीक है, वंडरफुल वंडरफुल। ठीक है, हमने ये पहले भी पढ़ चुके हैं वैसे ये टॉपिक ना। सो द आइडिया इज कि किस कैटेगरीज के लैंड को एक्सक्लूड किया गया है फ्रॉम द परव्यू ऑफ द दिस फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट। ठीक है, तो ये बाकी ये कहानी है, ये पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको। नेक्स्ट आ जाओ, सेफ सिटी प्रोजेक्ट्स क्या है। तो मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स, ठीक है, 2018 में इट सैंक्शन द प्रोजेक्ट्स अंडर निर्भया फंड। तो हम निर्भया फंड के बारे में हमें पता है कब क्यों सेट हुआ था। ठीक है, इसमें 8 सिटीज को सेफ सिटीज बनाने का एक प्रोग्राम था, विच इंक्लूडेड बेंगलुरु एज वेल। ठीक है, तो यूज करना हमने एआई को, वी यूज एआई, देन बेटर टेक्नोलॉजी, बेटर इंफ्रास्ट्रक्चर। ठीक है, बेटर बेटर ग्लोबल नो हाउ, उससे हम बेटर अपनी सिटीज को सेफ बनाएंगे। कम्स अंडर द प्रीव्यू ऑफ MHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स। देन वी हैव जीआई टैग्स किस किस को मिले हैं। नंबर 1 यू हैव बसोली पेंटिंग, जम्मू कश्मीर की है ये। ठीक है, इंडिपेंडेंट जीआई टैग मिला है इसको, जम्मू रीजन से सबसे पहली बार। लद्दाख की वुड कार्विंग, इट्स मेड फ्रॉम लोकल वुड सच एज विलो एंड एप्रिकॉट। ठीक है, वहां पे एप्रिकॉट और विलो काफी मिलता है, एप्रिकॉट। ठीक है, खुबानी। देन यू हैव यूपी में बनारसी पान, लंगड़ा मैंगो फॉरेंसी, रामनगर भंटा दैट इज ब्रिंजल, एंड चंदोसी आदमची चावल राइस, चावल और राइस वट एवर। ये नाम बस याद कर लो आप, यू हैव टू जस्ट रिमेंबर दीज नेम्स। तो बस क्रैम ही करना है आपको। ठीक है, सो दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, कुड बी आस्क्ड इन द एग्जामिनेशन। एक हमारा अमृत सरोवर एक मिशन स्टार्ट किया गवर्नमेंट ने, कि हर डिस्ट्रिक्ट में आपको 75 वाटर बॉडीज बनाने हैं। ठीक है, क्रिएटिंग, ठीक है, 50,000 वाटर बॉडीज टोटल। ठीक है, एक करके साइज के। नेक्स्ट यू हैव इंडिया इलेक्टेड टू द यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन। ठीक है, ये आपका न्यूयॉर्क में हेडक्वार्टर्स है इसका। 24 मेंबर स्टेट्स हैं, यूएस एंड 10 अदर नेशंस हैं इसमें। ठीक है, यूएन स्टैटिस्टिकल कमीशन में इंडिया इज नॉट अ पार्ट ऑफ इट। देन यू हैव इन्वेजिव एलियन स्पीशीज इन गल्फ ऑफ मन्नार। ये हम पहले भी शायद पढ़ चुके हैं, मुझे ऐसे क्यों लग रहा है। प्रोस्पिस चैलेनेसिस, ठीक है, प्रोसोपिस चैलेनेसिस। ठीक है, ये इन्वेजिव स्पीशीज है जो साउथ अमेरिकन कंट्रीज में मिलती है, जो हमें गल्फ ऑफ मन्नार में मिली है। देन यू हैव ओगसवारा ट्रेंच। ठीक है, एक स्नेल फिश, ठीक है, वाज फिल्म, अ टाइप ऑफ स्नेल फिश वाज फिल्म एट द डेप्थ ऑफ दिस इन आइजू ओगसवारा ट्रेंच। कहाँ पे है? साउथ ऑफ जापान में। ओके, देन इंडिया के जो डिफेंस एक्सपोर्ट्स हैं हैव इंक्रीज 10 टाइम्स, 10 फोल्ड लास्ट 6 ईयर्स में। इंडिया ने सबसे ज्यादा कहाँ भेजे हैं? म्यांमार में, श्रीलंका में और अर्मीनिया में। ओके, एनी डाउट्स? फिर आ जाओ अपना नेशनल स्टीयरिंग कमेटी अंडर डॉक्टर के कस्तूरी रंगन। ठीक है, वो सेटअप बाय मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन टू अंडरटेक एंड गाइड द डेवलपमेंट ऑफ नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क। ओके, इसके बाद आप आए कि स्टैंड अप इंडिया स्कीम क्या है आपकी। स्टैंड अप इंडिया स्कीम, ठीक है, एंटरप्रेन्योरशिप अमंग वुमेन एंड शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स। ये लॉन्च हुई थी 7 साल पहले, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की ये एक डिपार्टमेंट है। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस में 2 4 डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू, डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विसेज। ये सारे मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की सिस्टर सिस्टर बॉडीज हैं, या सब पार्ट, सब ऑर्गेनाइजेशन, सब डिपार्टमेंट्स हैं। ठीक है, तो ये क्या करता है, ये स्कीम जो हमारी स्टैंड अप इंडिया, बैंक लोन्स देगी 10 लाख से 1 करोड़ तक टू एटलीस्ट 1 SC/ST बोरोर एंड 1 वुमेन बोरोर पर ब्रांच। ठीक है, फॉर सेटिंग अप ग्रीन फील्ड एंटरप्राइज। ग्रीन फील्ड क्या होता है? फॉर एग्जाम्पल, कोई एयरपोर्ट बना हुआ है पहले से, तो उसको रिफर्बिश करके वहीं पे नया एयरपोर्ट बनाया है, तो दैट इज ब्राउन फील्ड। दैट इज ब्राउन फील्ड। ब्राउन फील्ड का मतलब पहले से वहां पे कोई इंफ्रास्ट्रक्चर था, उसको रिफर्बिश किया गया।
ग्रीन फील्ड होगा कि फॉर एग्जाम्पल अ न्यू ट्रैक्ट ऑफ लैंड, यहाँ पे एक नया प्रोजेक्ट आया, दैट प्रोजेक्ट विच स्टार्ट्स अफ्रेश, दैट इज कॉल्ड एज ग्रीन फील्ड। ठीक है, तो इसमें किस किस सेक्टर में होगा ये? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर, सर्विसेज, ट्रेडिंग, तीनों सेक्टर्स में। ठीक है ठीक है, इसमें क्या है, अगर नॉन इंडिविजुअल एंटरप्राइज है, अब नॉन इंडिविजुअल का मतलब जैसे एक से ज्यादा लोग हैं, तो उसमें 51% से ज्यादा जो स्टेक होल्डर होगा वो या तो SC ST होगा या वुमेन होगा। ठीक है, क्रेडिट गारंटी फंड फॉर स्टैंड अप इंडिया, ये इसके लिए सेटअप किया गया। समझ आ गया आपको कि इसमें 10 लाख से 1 करोड़ तक के लोन मिलेंगे टू प्रायोरिटाइज entrepreneurship, to encourage entrepreneurship amongst women and SC ST, so as to ensure their economic empowerment. And the sectors in which it is going to happen is manufacturing, services, manufacturing, सर्विसेज और ट्रेडिंग। ठीक है, 3 सेक्टर्स में। ऑल राइट, नाटो का फुल फॉर्म क्या है? एनीवन कैन टेल मी? नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। वंडरफुल। सो नाटो क्यों न्यूज में है? आप सबको पता है कि यूक्रेन और इसराइल की वॉर चल रही है, सॉरी यूक्रेन और रशिया की वॉर चल रही है। यूक्रेन रशिया हैव बीन एम्ब्रॉयल्ड इन अ वॉर फॉर क्वाइट सम टाइम नाउ, द रीजन बीइंग दैट रशिया हैज बीन प्रोटेस्टिंग द ईस्टवर्ड एक्सटेंशन ऑफ नाटो, कि नाटो, यूक्रेन अभी नाटो का मेंबर नहीं है, बट जो वेस्ट है, particularly the NATO countries, 30 NATO countries and now the latest फिनलैंड 31वीं कंट्री बन गई है। ठीक है, तो वो ईस्टवर्ड एक्सटेंड हो रहे हैं, ईस्टवर्ड। तो रशिया को अपनी ये सॉवरेनिटी पे सवाल हो रहा है कि दैट बफर इज गॉन एंड नाउ द वेस्ट इज ब्रेकिंग दैट वार्सा पैक्ट और वो सब जो ट्रीटीज हुई थी। तो दैट इज द कॉन्टेक्स्ट कि नाटो क्यों न्यूज में है। तो 31st मेंबर कौन बना? फिनलैंड। नेक्स्ट इज ब्रिटेन will become the 12th member to join CPTPP, Comprehensive and Progressive Agreement on Trans-Pacific Partnership. ठीक है, Trans-Pacific means Pacific and beyond. The first to join partnership since its inception. US ने withdraw कर लिया था TPP से। US had withdrawn from the Trans-Pacific Partnership. ठीक है, और कौन कौन से मेंबर्स है TPP के, ये याद कर लो आप थोड़ा सा, दिस इज इंपॉर्टेंट। व्हाट आर द मेंबर्स? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो इसमें एक तो है यूएस, तो अब नहीं है, यूएस इज नॉट अ मेंबर। ब्रिटेन हैज बिकम द 12th मेंबर। व्हाट आर द अदर मेंबर्स? ऑस्ट्रेलिया, ब्रूनेई दारुसलाम, कनाडा, चिली, जापान, मलेशिया, मेक्सिको, पेरू, न्यूजीलैंड, सिंगापुर, वियतनाम। तो जस्ट रीड दैट एंड ट्राई टू रिमेंबर। क्लियर है यहां तक? कोई शक, कोई डाउट? नो सर। Okay, wonderful. Then we have next is ASBA. What is ASBA? SEBI approved किया है इस फ्रेमवर्क को। तो इट स्टैंड्स फॉर, ये डायरेक्ट आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकते हैं इसका, ASBA का, एप्लीकेशन सपोर्टेड बाय ब्लॉक्ड अमाउंट। क्या है ये? इट इज अ फैसिलिटी दैट अलाउज इन्वेस्टर्स टू अप्लाई फॉर IPOs। IPOs पता ना आपको, जब स्टॉक एक्सचेंज पे लिस्ट होती है कंपनी, and invest in stock market without actually transferring the money to the IPO issuer or stockbroker upfront। ठीक है, पहले पैसा नहीं देना है इसमें। ठीक, वो इसका एक डिफरेंस है। इंस्टेड क्या होता है कि जो इन्वेस्टर की एप्लीकेशन मनी है वो टेम्पररी ब्लॉक्ड हो जाती है इन देयर बैंक अकाउंट अंटिल द शेयर्स आर लॉटेड। फॉर एग्जांपल, आपने किसी कंपनी का शेयर खरीदा है, ठीक है, तो आपने पैसे दे दिए हैं, तो आपके पैसे डायरेक्टली उस पेरेंट कंपनी को नहीं जाएंगे, वो मतलब एक इंटरमीडियरी में ब्लॉक रहेंगे कुछ देर के लिए। व्हेन यू आर अलॉटेड, जब आपको शेयर्स अलॉट हो जाएंगे, उसके बाद वो पैसा ट्रांसफर होगा उस पेरेंट कंपनी में। तो दैट इज अ वेरी काइंड ऑफ इन्वेस्टर फ्रेंडली एक इनिशिएटिव है, कि कुछ डिफ्रॉडिंग करने के लिए, फ्रॉड जो होते हैं उसको प्रिवेंट भी करने के लिए। दिस हेल्प्स इन्वेस्टर्स अर्न इंटरेस्ट ऑन देयर मनी एज वेल while it is blocked,
एंड ऑल्सो एलिमिनेट्स द रिस्क ऑफ फ्रॉड। तो जिस टाइम तक वो पैसा वो उस अकाउंट में ब्लॉक रहेगा, उनको इंटरेस्ट भी मिलेगा और उनका जैसे डी फ्रॉड होने का अपॉर्चुनिटी चांस भी कम हो जाएगा। ठीक है। नेक्स्ट आपका आ गया unclaimed deposits. What are unclaimed deposits? So deposits of individuals in any bank account that remain unclaimed for 10 years. ठीक है, 10 साल तक these claims, unclaimed deposits are transferred to the depositor education and awareness fund maintained by RBI. So RBI is launching a portal to help retrieve unclaimed deposits. तो यही आपको पता है कि कोई भी डॉर्मेंट होता है बैंक अकाउंट 10 साल से ज्यादा तक, तो वो मतलब डॉर्मेंट हो जाता है, उसको फिर मतलब अनक्लेम्ड में कैटेगरी में आ जाएगा एंड देन आरबीआई उसको यहाँ ट्रांसफर कर देगी। ठीक है। नाउ दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट हियर, यू हैव टू रिमेंबर इट। ग्लोबल ट्रेड आउटलुक स्टैटिस्टिक्स, दिस इज एन इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। हु गिव्स दिस? वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यूटीओ। ठीक है। डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड क्या कहता है? डब्ल्यूटीओ वर्ल्ड मर्चेंडाइज ट्रेड विल ग्रो 1.7 degrees, sorry, 1.7% the next year. The data is not important. You just remember this. World Trade Outlook and Statistics report is given by World Trade Organization. ठीक है। So next we have what is green steel? Green steel क्या है? Green steel refers to steel making process that lowers the greenhouse gas emissions, cuts cost and improves quality of steel. ये बहुत आसान सवाल, मतलब अगर आपने नहीं भी पढ़ा हो तब भी आप आंसर दे पाएंगे कि जैसे ग्रीन हाउस गैस एमिशंस कम होती हैं, कॉस्ट रिडक्शन होती है और क्वालिटी बढ़ जाती है। तो एनवायरमेंटली सस्टेनेबल एज वेल एज एफिशिएंट सिस्टम ऑफ प्रोडक्शन। ओके। नेक्स्ट आपका आ गया वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। ठीक है, ये रिपोर्ट किसकी है? आईरीना, इंटरनेशनल रिन्यूएबल एनर्जी एजेंसी। दिस रिपोर्ट इज गिवन बाय आईरीना, वर्ल्ड एनर्जी ट्रांजिशन आउटलुक। आईरीना क्या है? इट इज एनर्जी, ऑब्वियसली रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर फोकस्ड है। इसका हेडक्वार्टर्स इज इट एज एट अबू धाबी एंड इट वाज फाउंडेड इन 2009। ठीक है। 2009 में इंडिया इसका 77th फाउंडिंग मेंबर था। इंडिया इज वाज अ फाउंडिंग मेंबर सेम टाइम में। ठीक है। और इसको यूएन का ऑब्जर्वर स्टेटस भी है। बस याद क्या रखना है आपको? ऑल यू हैव टू रिमेंबर इज क्या याद रखना आपको इसमें? बस इसका हेडक्वार्टर्स कहाँ पे है। ठीक है, अरीना का हेडक्वार्टर्स कहाँ पे, कब बना है, इंडिया मेंबर है कि नहीं है। ठीक है, क्लियर है? Yes, sir. नेक्स्ट आप आ जाइए। देखो ये थोड़ा वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज वगैरह ये भी आपको थोड़ा याद रखनी है टॉपिक्स। एक सेकेंड बस। तो वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज बिकम इम्पोर्टेंट फ्रॉम द एग्जाम पर्सपेक्टिव बिकॉज दे कैन आस्क दैट। और जब आप कोई वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पढ़ो तो उसके सराउंडिंग रिवर कौन सी है, ठीक है, ठीक है, और किस टाइप, व्हाट इज द कीस्टोन स्पीशीज, तो उस तरह की मेन मेन चीजें आपने याद रखनी। तो ये आपकी है नेत्रावली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, साउथ गोवा में। ठीक है। तो इसमें रिवर कौन सी है? रिवर नेत्रावली और नेतुरली इस सेंचुरी में ओरिजिनेट होती है, नेत्रावली के नाम से ही है। और जुआरी रिवर जो गोवा की काफी पॉपुलर एक रिवर है, जुआरी रिवर, वो भी इसकी ट्रिब्यूटरी है नेत्रावली रिवर की। ठीक है। नेक्स्ट, भगवान महावीर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी एंड कोटिगांव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी इसके नॉर्थ में है। तो ये सारी ये सेंचुरीज आपकी इसी सराउंडिंग एरियाज में है गोवा के। ठीक। और कौन कौन से प्रोटेक्टेड एरियाज है गोवा में, पता होना चाहिए आपको। जैसे कोटिगांव हमने देख लिया,
महादेव हम पढ़ चुके हैं पहले, महादेव वाइल्ड लाइफ सेंचुरी हम एक बार पढ़ चुके हैं पहले, अगर आपको थोड़ा सा याद हो तो। भगवान महावीर सेंचुरी, ठीक है। उसके बाद बोंडला वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, देन मोलेम नेशनल पार्क। मोलेम यहाँ पे है, आप मेरे को बताएंगे मोरलेम कहाँ पे है, वेयर इज मोरलेम नेशनल पार्क, ठीक है। और सलीम अली बर्ड सेंचुरी। तो ये सारी इंपॉर्टेंट हो जाती हैं गोवा की सेंचुरीज, ओके। तो दिस यू हैव टू रिमेंबर। टेल मी वेयर इज मोरलेम, MORLEM। नेक्स्ट आप आ जाइए रकून स्टीलर। ये मालवेयर है क्या इसका, अभी देखते हैं। So it retrieves sensitive data from infected machines. कि those hardware which has been infected by viruses, trojans, or any kind of malware. So they retrieve any sensitive information that can be critical from such infested machines. The malware is usually delivered through the email and is available as malware as a service. ठीक है, ये इस तरह से होता है। NTRO, टारगेटेड बाय NTRO पे टारगेट, नेशनल टेक्निकल रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, ये भी एक इंटेलिजेंस ऑर्गेनाइजेशन है, टेक्निकल इंटेलिजेंस। तो ये यहाँ पे इसको भी टारगेट हुआ था थ्रू दिस रकून स्टीलर मालवेयर। अब एक विस्लिंग विलेज है, तो ये पूछा जा सकता है कि विस्लिंग विलेज कहाँ पे है, ठीक है। तो कोंगथोंग विलेज, मेघालय में, इसको हम विस्लिंग विलेज भी कहते हैं। इंडियाज ओनली विस्लिंग विलेज। कहाँ पे है ये? ईस्ट खासी हिल्स। East Khasi Hills, it's a lovely place. If you get an opportunity, you must visit this. So it's called as a whistling village. The unique tradition of, ये नाम याद रखना है आपको, जिंगरवाई लववाई, मीनिंग song of the clan's first woman. So these are little things you should remember. Whistling village, Kongthong village मेघालय में, ठीक है। ईस्ट खासी हिल्स, यहाँ पे एक ट्रेडिशन है जिंगरवाई लववाई, the pronunciation can vary, ठीक है। So that's about it. ये आई थिंक इट्स मेरा गांव होना चाहिए, मेरा गांव मेरी धरोहर। मेरा गांव मेरी धरोहर हैज टू बी मिनिस्ट्री ऑफ एग्रीकल्चर, सॉरी कल्चर, ठीक है। मेरा गांव मेरी धरोहर। नेक्स्ट इज डी डॉलराइजेशन। तो व्हाट इज डी डॉलराइजेशन? इट रेफर्स टू रिड्यूसिंग द यूज ऑफ डॉलर्स इन इंटरनेशनल ट्रेड एंड फाइनेंस। तो इंडिया, चाइना और बाकी कंट्रीज, मतलब ये प्रमोट टारगेट कर रही हैं कि डॉलर जो ट्रेड होता है, मैक्सिमम इंटरनेशनल ट्रेड, वो डॉलर्स में होता है। इट हैपन्स इन डॉलर्स, ठीक है। तो उसको रिड्यूस करना है। जैसे यूरो में कुछ होता है, कुछ चाइना की करेंसी में होता है, रेनमिनबी, युआन। फिर रुपी में भी हम प्रमोट कर रहे हैं, रूबल में भी कुछ होता है ट्रेड। तो द आइडिया इज टू रिड्यूस द ट्रांजैक्शन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन डॉलर्स एंड रिड्यूस इट, दैट्स इट्स डी डॉलराइजेशन, ओके। अच्छा, एक ना हमारा जो लीगो लीगो इंडिया प्रोजेक्ट, ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्टर, ये हिंगोली हिंगोली महाराष्ट्र में बिल्ड हो रहा है। लीगो इंडिया इन हिंगोली महाराष्ट्र, इट विल बी थर्ड ऑफ इट्स काइंड इन द वर्ल्ड। दो और हैं, वो कहाँ पे हैं? एक तो लुइसियाना में है और वॉशिंगटन में है, ठीक है। और फोर्थ डिटेक्टर कागरा जापान में भी बनाया जा रहा है। तो देयर आर टोटल 4 लीगो प्रोजेक्ट्स। लुइसियाना इन यूनाइटेड स्टेट्स, देन यू हैव वॉशिंगटन DC, देन यू हैव इंडिया का हिंगोली महाराष्ट्र, देन यू हैव फोर्थ इन कागरा जापान। So these are the 4 places where you have LIGO kind of systems, gravitational wave observatories, ठीक है। Next you have Meerkat radio telescope. So Meerkat is an array of 64 large antenna dishes, ठीक है, in the Meerkat National Park. अब ये पता होना चाहिए, लोकेशन भी पूछी जा सकती है, ये साउथ अफ्रीका में है, नॉर्थ केप ऑफ साउथ अफ्रीका, ठीक है। Then it uses radio signals from space to study the evolution of universe. मेजर आपको लोकेशन याद रखनी है, ठीक है। कोडिंग फ्रेमवर्क कॉल्ड एस्ट्रोनोमली डिस्कवर्ड समथिंग blah blah blah. Sauron is the first scientific discovery made in Meerkat using machine learning. तो ये बस ये याद रखो, इसका ज्यादा इसमें याद रखने की जरूरत नहीं है। Then you have odd radio circles. What are odd radio circles? An odd radio circle is a very large unexplained astronomical object that at radio wavelengths is highly circular
and brighter at its edges. ठीक है, clear है? Then you have short-beaked echidna. Short-beaked echidna. It is one of the 4 living species of echidna. Echidna species होती हैं covered in fur and spines and has a distinctive snout and tongue. बस इतना नहीं याद रखना आपको, बस कहाँ मिलता है याद रखे कि वन ऑफ द 4 स्पीशीज है ये शॉर्ट बीक एकिडना एंड वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यू गेट इट. अब अगर आपको इंडिया के रिवर सिस्टम्स का थोड़ा सा पता हो तो आपको ये पता होगा दिबांग रिवर कहाँ पे है, तो अरुणाचल प्रदेश में है. तो इट इज सेड टू बिकम वाइल्ड लाइफ सेंचुरी टू बिकम इंडिया बिकम द टाइगर रिजर्व वेरी वेरी सून. कौन कौन सी ट्राइब्स होती है वहाँ पे? ईदू मिशमी ट्राइब, और वहाँ पे मोलिंग नेशनल पार्क भी है. दिबांग वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 1980 में बनी थी. ठीक है, ठीक है. देन यू हैव hikikomori. What is hikikomori? It is a phenomena. It is a phenomenon in Japan. Am I audible, guys? Yes, sir. Okay, okay. So hikikomori pronunciation आप देख लीजिए, is a phenomena in Japan where an estimated 1.5 million working age people are living in isolation and avoiding social contact. ठीक है, it is not recognized as a clinical diagnosis but rather a social phenomena. तो यहाँ पे 1.5 मिलियन 15 लाख लोग, ठीक है, आइसोलेटेड होके रह रहे हैं, आइसोलेटेड विदाउट एनी सोशल कॉन्टैक्ट. तो इस फिनोमिना को जापान में कहते हैं हिकिकोमोरी. ठीक है. ह्यूमन कंपोस्टिंग, ऑल्सो नोन एज नेचुरल ऑर्गेनिक रिडक्शन, is a process of transforming the human body into nutrient rich soil. ठीक है, ह्यूमन बींग्स जब डिकम्पोज होते हैं आफ्टर डेथ, ठीक है, has emerged as an eco-friendly alternative to traditional burial और cremation. जो हम ट्रेडिशनली बरी करते हैं या क्रीमेट करते हैं, उसके अलावा ह्यूमन कंपोस्टिंग, तो पीपल सम एनवायरमेंटलिस्ट हैव सजेस्टेड दिस, ताकि वो एक मतलब सॉइल में कन्वर्ट हो जाए और इको फ्रेंडली टेक्निक है वो. दैट इज अबाउट इट. सो प्राइम मिनिस्टर मोदी हैज praised the innovative waste management system from vegetable waste. कहाँ पे? बोवनपल्ली वेजिटल मार्केट, हैदराबाद. तो आपको ये पूछा जा सकता है कि ये बोवनपल्ली वेजिटेबल मार्केट कहाँ पे है? ठीक है, सो यहाँ पे इनोवेटिव वेस्ट मैनेजमेंट टेक्निक यूज की गई है. ठीक है, हैदराबाद में आप. ठीक है, नेक्स्ट आपका CR राव, इंडियन अमेरिकन स्टैटिस्टिशियन है ये, मिस्टर कैलमपुडी राधाकृष्ण राव. ही हैज बीन अवॉर्डेड विद इंटरनेशनल प्राइज ऑन स्टैटिस्टिक्स. तो नोबेल, ये स्टैटिस्टिक्स का नोबेल हम कह सकते हैं. ठीक है, इनका नाम याद रख लो बस. दिस कैन बी आस्क्ड, सो आई वुड मार्क इट एज इंपॉर्टेंट. अवार्ड्स एंड ऑनर्स ये याद रखने हैं. तो यूनियन कैबिनेट ने चेंज किया है प्राइसिंग regime for domestic natural gas under administered price regime. ये क्या क्या होती है? It applies to pricing of gas produced by legacy fields. Legacy fields मतलब जो पुरानी, ठीक है, old oil fields awarded to ONGC and Oil India Limited before 1999 when auctioning started. ठीक है, auctioning start हुई थी 1999 में. उससे पहले की जो ऑयल फील्ड्स थी उनको, ठीक है, उनका एडमिनिस्टर्ड प्राइस मतलब सरकार करेगी एडमिनिस्टर्ड उनके प्राइसेस को. APM gas accounts for about 2/3, 66.66% of India's natural gas production. ठीक है, तो ये एक पैनल है, ये आपको पता होना चाहिए कि किरित परख पैनल किस चीज से रिलेटेड है. तो इट इज रिलेटेड टू गैस प्राइसिंग. नेक्स्ट वी हैव ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम. ठीक है, ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम फॉर द एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट्स. ठीक है, डिजाइन टू एड्रेस काउंटरफीट एंड प्रोडक्ट रिकॉल इश्यूज. काउंटरफीट, गलत प्रोडक्ट दे देना और प्रोडक्ट वापस आ जाना, उन चीजों के लिए था ये. ठीक है, बेस्ड ऑन ट्रेसेबिलिटी एंड बारकोड्स. तो बस ये याद रख लो कि ट्रैक एंड ट्रेस सिस्टम किस चीज के लिए? इट इज फॉर एक्सपोर्ट ऑफ फार्मास्यूटिकल कंसाइनमेंट्स. देन वी हैव दिस टेम्पो. व्हाट इज टेम्पो?
ट्रोपोस्फेरिक emissions monitoring of pollution. ठीक है, this is an instrument that is devised by Falcon 9. Falcon 9 rocket किसका है? Falcon 9 is the rocket of SpaceX. ठीक है, that will enable scientists to track air pollution over North America from space. ठीक है, कवरेज एरिया ग्रेट, कवरेज एरिया इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये याद रखना है कि टेम्पो कुछ प्रोजेक्ट है क्या है, आप आइडेंटिफाई कर पाना चाहिए। आप एग्जाम में अगर पूछा जाएगा कि टेम्पो क्या है, तो ये एक ट्रोपोस्फेरिक एमिशंस है, मॉनिटरिंग ऑफ पोल्यूशन एक मैकेनिज्म है, एक इंस्ट्रूमेंट है। किसके थ्रू है? फैल्कन 9। किसका है? ये स्पेस एक्स का है। तो रिमेंबर दीज थिंग्स। अब देखो, टाइगर सेंसस होता है हर 4 साल में एक बार होता है। ठीक है, द फिफ्थ साइकिल ऑफ ऑल इंडिया टाइगर एस्टिमेशन, ठीक है, वाज रिलीज टू मार्क 50 इयर्स ऑफ प्रोजेक्ट टाइगर। कब हुआ था प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च? 1973। ठीक है, अभी लेटेस्ट जो सेंसस हुआ है उसके अकॉर्डिंग टाइगर्स की स्ट्रेंथ है 3167। ठीक है, तो 6.7% इंक्रीज हुआ है। कौन से नए एरियाज हैं? उत्तर प्रदेश की सुलेहा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। अब ये याद रखना आपने, सुहेलवा वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कहाँ पे है? उत्तर प्रदेश में है। कम घटा कहाँ कहाँ पे है पर टाइगर की पॉपुलेशन? वेस्टर्न घाट्स में, नॉर्थ ईस्ट में, झारखंड, छत्तीसगढ़, तेलंगाना में। और कहाँ पे इंक्रीज हुआ है? शिवालिक और गैंजेटिक हिल्स में। ठीक है, बेस्ट मैनेज टाइगर रिजर्व, ये पिछले साल भी यही था, अभी फिर से वही है, पेरियार। पेरियार टाइगर रिजर्व, इट इज इन केरला, या बेस्ट मैनेज, फॉलोड बाय सतपुरा एंड बांदीपुर नागरहोल। ठीक है, अब नीलगिरी हिल्स के आसपास बहुत सारे नेशनल पार्क्स है, जैसे नागरहोल, बांदीपुर, मुद्दुमलाई, शेषाचलम, ये सत्यमंगलम, ये सारे वहीं पे हैं। तो नीलगिरी क्लस्टर, नागरहोल टू बिलीरीगंगा हिल्स इज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ये जो क्लस्टर है नीलगिरी एरिया, नीलगिरी में, जैसे ये इंडिया का मैप है, तो आपका यहाँ पे वेस्टर्न घाट्स आ रहा है, यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स मिल रहा है, तो यहाँ पे ये मीटिंग पॉइंट है आपका जो, दैट इज नीलगिरीज। तो नीलगिरीज के आगे पीछे का जो एरिया है ना, इट इज द लार्जेस्ट टाइगर पॉपुलेशन इन द वर्ल्ड। ऑलराइट, ठीक है, मूविंग ऑन। लैंग्वेज फ्रेंडशिप ब्रिज क्या है ये? इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस has launched a project called Language Friendship Bridge to train people and create a pool of experts। 10 लैंग्वेजेस में, कौन सी उनमें से कुछ लैंग्वेजेस कौन सी है? कजाकिस्तान की लैंग्वेज है कजाक, उज्बेक, बर्मीज एंड सिंहालीज। सिंहालीज इज स्पोकन इन श्रीलंका। ठीक है, तो म्यांमार, श्रीलंका, इन कंट्रीज के साथ हमने अपनी टाइज इंप्रूव करनी है, तो वी हैव टू मेक सर्टेन पूल ऑफ एक्सपर्ट्स हु आर एक्सपर्ट इन देयर लैंग्वेजेस। देन कुटम पेरूर रिवर 7.2 किलोमीटर लॉन्ग है, आलापुड़ा इन केरला। ठीक है, इट हैज बीन रिजुविनेटेड मींस रिवाइव्ड आफ्टर 6 ईयर पीरियड। तो ये याद रखना, ये रिवर कहाँ पे है? कुट्टमपरूर रिवर इन आलापुड़ा, केरला। नेक्स्ट आप आ जाइए, टाइप्स ऑफ अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, एडमिनिस्ट्रेटिवली अर्बन सेटलमेंट्स, सेंसस अर्बन सेटलमेंट्स। ठीक है, दोज दैट आर गवर्न बाय अर्बन लोकल बॉडी या एडमिनिस्ट्रेटिव। सेंसस जिनकी पॉपुलेशन 5000 से ज्यादा है। तो ये डेफिनेशन है बस इनकी। मिनिस्ट्री ऑफ पावर रिलीज्ड स्टेट एनर्जी एफिशिएंसी इंडेक्स 2022। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ पावर ने ये रिलीज किया है। डेवलप किसने किया है? ब्यूरो ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी इन एसोसिएशन विद AEEE, अलायंस फॉर एनर्जी एफिशिएंट इकोनॉमी। BEE प्लस AEEE, ये दो बॉडीज हैं जिन्होंने ये इंडेक्स रिलीज किया है, प्रिपेयर किया है। कर्नाटका और असम ने टॉप किया रिस्पेक्टिव कैटेगरीज। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव एक्सरसाइज कवच। इट इज अ जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज, ठीक है, इन्वॉल्विंग
एसेट्स ऑफ आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एंड कोस्ट गार्ड। ठीक है, जॉइंट एक्सरसाइज है तीनों बॉडीज की। समझ गए? यहां तक कोई डाउट है किसी को? No, sir. एनी डाउट? ओके ओके। नेक्स्ट आपका आ गया, व्हाट इज गुड फ्राइडे एग्रीमेंट। ठीक है, 1998 में साइन हुई थी नॉर्दर्न आयरलैंड और ब्रिटेन के बीच में, टू एंड 30 years of violence known as the Troubles in Northern Ireland. So गुड फ्राइडे एग्रीमेंट साइन किसको खत्म करने के लिए हुआ था? द ट्रबल्स इन नॉर्दर्न आयरलैंड। ब्रिटेन का काफी थोड़ा सा वहां पे रहा है, कुछ ऑक्यूपेशन रहा है आयरलैंड में काफी देर तक, तो उसकी वजह से तो 1921 में क्रिएट हुआ था, एंड इन 1922 रेस्ट ऑफ द आयरलैंड गेन इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटेन। ठीक है, दैट इज टुडेज रिपब्लिक ऑफ आयरलैंड विद इट्स कैपिटल डबलिन। तो आयरलैंड का कैपिटल याद रखना है क्या है? डबलिन। जो नॉर्दर्न आयरलैंड है ना, वो आज भी यूके के साथ है। बार बार रेफरेंडम होता है वहां पे कि वो अलग होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, तो दीज थिंग्स कीप हैपनिंग। ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए, व्हाट इज सेल्यूलर एग्रीकल्चर, वे ऑफ प्रोड्यूसिंग एनिमल बेस्ड प्रोडक्ट्स सच एज मीट, मिल्क, एग्स without the need to raise and slaughter animals. Instead, ये produce from cells in the laboratory. ठीक है, तो लैब में आप मीट ग्रो करोगे टिश्यू इंजीनियरिंग से। We grow these meat, fish, and milk from cells in laboratory using tissue engineering and fermentation. ठीक है, नेक्स्ट आप आ जाइए, ज्योतिबा फूले, ग्रेट सोशल रिफॉर्मर। ठीक है, इनके कुछ पब्लिकेशंस हैं, उनका नाम बस पढ़ लीजिए। तृतीय रत्ना, पोवाड़ा छत्रपति शिवाजी भोसले यांचना, गुलामगिरी और शेतकर्या औसद। He also served as a commissioner to Pune municipalities. ठीक है, 1880 आई थिंक 8 तक था ये, एग्जैक्ट गलत लिखा है यहाँ पे। जीआई टैग किसको मिला? कम्बन पनीर थ्रचाई। ये क्या है? कम्बम ग्रेप्स हैं, ये तमिलनाडु की एक ग्रेप वैरायटी है, फ्रेंच ने इंट्रोड्यूस की थी 1832 में। तो पनीर से ये पनीर, ये इट्स नॉट चीज, इट्स ग्रेप्स। ठीक है, नेक्स्ट वी हैव कॉपरनिकस क्लाइमेट चेंज सर्विस। ठीक है, इट्स अ मंथली क्लाइमेट बुलेटिन ऑफ यूरोपियन कमीशन to report the changes observed in global surface air temperature, sea ice cover and hydrological variables. तो बस ये याद रखना है कि ये यूरोपियन कमीशन ने लॉन्च किया टू ऑब्जर्व दिस climatic hydrological variables. नेक्स्ट आ जाइए, बेंगलुरु। बेंगलुरु Cambridge layout in Ulsur is said to have India's first post office built on 3D printing technology. पहला 3D printed पोस्ट ऑफिस कहाँ पे बना ये? अल्सूर, बेंगलुरु। ठीक है, व्हाट इज अ मैजिक नंबर? ये फिजिक्स में दे आर स्पेसिफिक नंबर ऑफ प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स इन द एटॉमिक न्यूक्लियाई दैट correspond to stable configurations. The heaviest known nucleus is lead, 82 protons. ठीक है, मैजिक न्यूक्लियस सबसे heaviest known है, lead है, it has 82 protons. ठीक है, आफ्टर दिस अनस्टेबल हो जाता है। ठीक है, जापान में रिसेंटली डिस्कवर किया है एक नोन आइसोटोप ऑफ यूरेनियम, एटॉमिक नंबर 92 एंड मास नंबर दिस U241। आपने देखा होगा जो एनरिच यूरेनियम होता है U235 होता है, U238 थोड़ा कम एनरिच्ड होता है, उसे प्लूटोनियम भी हम कन्वर्ट करते हैं। तो ये सारा तो टेक्निकल डिटेल्स आगे इतना नहीं चाहिए आपको, बस मैजिक नंबर क्या है याद कर लो। मैग्नेटो रेजिस्टेंस, इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस ऑफ अ मटेरियल changes in response to
magnetic field. So electrical resistance changes in response to magnetic field. ठीक है, हाँ ये इंपॉर्टेंट आ गया। जूस मिशन किसका है? यूरोप का है, यूरोपियन स्पेस एजेंसी का है। ठीक है, करेगा क्या ये? जुपिटर में जाके जूस निकालेगा। ठीक है, जूस ऑफ इंफॉर्मेशन, इंफॉर्मेशन अबाउट द कॉस्मिक मिस्ट्रीज। तो स्टडी जुपिटर एंड 3 लार्जेस्ट मून्स, गैनीमेडे, कैलिस्टो एंड यूरोपा। ठीक है, किसका है? ईएसए का है ये प्रोजेक्ट, यूरोपियन स्पेस एजेंसी। Zero click spyware, what is it? It is a no interaction needed hacking tool known as zero click, which can remotely compromise devices without an owner needing to open a malicious link. ठीक है, क्लिक करने ऐसे होता है ना, आपको लिंक्स वगैरह आते हैं कि आप क्लिक करोगे तो आपका सिस्टम हैक हो जाएगा। ये विदाउट क्लिकिंग ही आपको सिस्टम को हैक कर लेगा, सिर्फ आपके सिस्टम में पहुंचना चाहिए। दैट इज जीरो क्लिक स्पाईवेयर। ठीक है, टेस्ट्स फॉर radioactive elements. Radioactivity in drinking water can be determined by a gross alpha test. ठीक है, यूनिट क्या है रेडियोएक्टिविटी मेजर करने की? बेकराल। बेकराल इज एसआई यूनिट, और क्यूरी भी है, ये दो इनकी एसआई यूनिट्स हैं। एसआई यूनिट ये है और ये अनदर यूनिट है। द यूनिट सीवर्ट मेजर्स द क्वांटिटी ऑफ रेडिएशन एब्जॉर्ब बाय ह्यूमन टिश्यूज। तो ये बहुत थोड़ा सा आप ये याद रख लें कि एक तो बेकराल हो गया एसआई यूनिट, क्यूरी हो गया, और सीवर्ट measures the quantity of radiation जो ह्यूमन बॉडी में, ह्यूमन टिश्यू में फाउंड की हो। Now this also becomes important. नेक्स्ट आपका आ गया ओडिशा पीवीटीजी न्यूट्रिशनल इंप्रूवमेंट प्रोग्राम। ठीक है, न्यूट्रिशनल स्टेटस ऑफ पीवीटीजीज। पीवीटीज आपको पता है क्या होती है? पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स। टोटल 75 हैं ये, स्प्रेड अक्रॉस 18 स्टेट्स एंड यूटीज। ठीक है, सबसे ज्यादा ओडिशा में ही है, 13। ठीक है, तो ये आपको याद करना पीवीटीजीज क्या होते हैं और क्या कहाँ कहाँ पे मिलता है। ठीक है, फेस्टिवल ऑफ इनोवेशन एंड एंटरप्रेन्योरशिप ऑर्गेनाइज्ड बाय नेशनल इनोवेशन फाउंडेशन। ठीक है, हेडक्वार्टर कहाँ पे इसका? अहमदाबाद में। कब बना था ये? 2000 में। ठीक है, अंडर डिपार्टमेंट ऑफ स्पेस एंड टेक्नोलॉजी, डीएसटी। बस ये याद रखो। ये काफी न्यूज में रही है, उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। ये तमिलनाडु की है। ठीक है, 1000-1200 साल पुरानी है। तो इट इज लाइक अ लोकल कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द ग्राम सभा। तो इंस्क्रिप्शन में ग्राम सभा के बारे में उस टाइम पे क्या होता था, लोकल गवर्नमेंट। आपको पता है इंडिया में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट का ओरिजिन चोला किंगडम में हुआ था। तो उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन उसी चीज के बारे में थोड़ा सा बताती है। ये नाम याद रखना है आपने, उत्तरामेरूर। उत्तरामेरूर इंस्क्रिप्शन। ठीक है, नेक्स्ट आ रही है सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है, अकॉर्डेड क्या हुआ? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 स्टेटस, मिनी रत्ना स्टेटस मिल गया। ठीक है, तो किसको मिलता है मिनी रत्ना स्टेटस? लास्ट 3 सालों में। ठीक है, जो टैक्स के बिना जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ है इन वन ऑफ द 3 years एंड अ पॉजिटिव नेटवर्थ। ठीक है, देखो पिछले 3 साल में, 3 में से किसी एक साल में जो टैक्सेस को काट के आपका जो प्रॉफिट है वो 30 करोड़ होना चाहिए, और आपका नेटवर्थ पॉजिटिव होनी चाहिए, नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। आप डेफिसिट में नहीं होने चाहिए, तो आपको मिनी रत्ना स्टेटस मिल जाता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया ये जो कॉर्पोरेशन है, कहाँ पे हेडक्वार्टर है? नई दिल्ली में है, 2011 में बनी थी।
अंडर कंपनीज एक्ट, ठीक है। इट इज अंडर मिनिस्ट्री ऑफ न्यू रिन्यूएबल एनर्जी, MNRE, और नेशनल सोलर मिशन को इम्प्लीमेंट करती है, पूरे सोलर रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर को ये कवर करती है, ठीक है। नेक्स्ट यू हैव सेफ्टी अक्रॉस एशिया फॉर एनवायरनमेंट, ग्लोबल एनवायरनमेंट। इट एम्स टू प्रिवेंट फ्यूचर पैंडेमिक्स, ठीक है। जो जूनोटिक डिजीज जैसे कोविड है, इट वाज आल्सो जूनोटिक डिजीज इन अ वे, केम फ्रॉम monkeys or whatever, ठीक है। यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम, कोऑर्डिनेट कौन करता है इसको? UNODC, ठीक है। मॉनिटर इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रैफिकिंग, फंडेड बाय EU। 4 एशियन कंट्रीज, चाइना, थाईलैंड, लाओ, वियतनाम वर इनिशियली सिलेक्टेड फॉर सर्वे। चाइना पार्टिसिपेट नहीं कर रहा, तो इन्होंने सर्वे करना था कि यहाँ पे किस तरह की स्मगलिंग हो रही है एनिमल्स की, या किस तरह का व्हाट आर दी ट्रीटमेंट बीइंग मीटेड आउट, सो दैट वी कैन फाइंड आउट पॉसिबल कनेक्शन विद दी एपिडेमिक्स एंड जूनोटिक डिजीजेस, किस तरह से वो इशू है। सो दैट वाज अबाउट इट। नेक्स्ट वी हैव YZ SETI B। क्या है ये? नाउ दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट, यू जस्ट हैव टू रिमेंबर द नेम। क्या है ये? एक्सोप्लैनेट है, हमारे सोलर सिस्टम के बाहर का, ठीक है। ये नाम बस याद रख लेना आपने, काम में पूछेगा तो भूलना नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ गया स्टेटस ऑफ वुमेन इन एग्री फूड सिस्टम्स। ऑब्वियसली एग्री फूड से रिलेटेड कोई भी चीज होगी वो रिपोर्ट आएगी FAO की, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन, जैसे UN बॉडी, UN, ठीक है। फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, क्लोजिंग द जेंडर गैप, बाकी डिटेल छोड़ दीजिए, बस याद रखिए कि ये रिपोर्ट है किसकी है ना, ठीक है। सो करंटली 2 वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 and MIP, Mycobacterium indicus prani, have been identified for TB, ठीक है। TB की वैक्सीन दो, वैक्सीन प्रोजेक्ट मैनेजमेंट 1002 एंड माइकोबैक्टीरियम इंडेक्स प्राणी, ये याद रख लें TB से रिलेटेड के वैक्सीन से। देन यू व्हाट इज satellite DNA? The simplest form of repetitive DNA is called satellite, which are blocks of DNA repeated over and over, ठीक है। जो DNA का जो DNA blocks होते हैं, which are repeated over and over again, which make the genetic function, that is called satellite DNA. However, many repetitive sequences do not have a known function and are sometimes called as junk DNA. रिपीट तो हो रहे होते हैं लेकिन उनका कुछ पर्टिकुलर स्पेसिफिक फंक्शन नहीं होता, ओके। एनी डाउट्स? देन यू हैव मिर्चा राइस। अब ये याद करो इसको। मिर्चा राइस कहाँ का है? बिहार के वेस्ट चंपारण डिस्ट्रिक्ट का, इसको GI टैग मिला है। दिस बिकम्स इंपॉर्टेंट अगेन, ठीक है। डब्बा ट्रेडिंग, व्हाट इज डब्बा ट्रेडिंग? इनफॉर्मल ट्रेडिंग आउटसाइड द परव्यू ऑफ, सो ये ट्रेडिंग होती है इनफॉर्मली आउटसाइड स्टॉक एक्सचेंजेस के परव्यू में। However, trading is done without actually buying or selling the stocks on a formal stock exchange. तो इसमें एक्चुअल बाइंग एंड सेलिंग नहीं होती, इसमें वर्चुअल बाइंग एंड सेलिंग होती है। इट इज रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफेंस अंडर सेक्शन 23(1) ऑफ सिक्योरिटीज कॉन्ट्रैक्ट्स रेगुलेशन एक्ट, एंड अपॉन कन्विक्शन या तो इम्प्रिजमेंट होगी 10 साल की और फाइन ऑफ 25 करोड़ और बोथ। तो आप ऐसे मतलब जो फर्जीवाड़ा में होता है, जो ये stock trading without the formal registration, that is considered as a crime under the Securities Contracts Act 1956, ठीक है। Then we have Dr. Ambedkar. He founded the People's Education Society to promote education among marginalized society. 1901 में फिनांस कमीशन एस्टैब्लिश किया था। Opposed income tax for low income groups. तो इनकी मेजर कुछ किताबें हैं, ये आप नाम याद रखना है, इसमें पूछेंगे। Economics, Administration and Finance of East India Company, Evolution of Finance in British India, and The Problem of Rupee. ये सबसे इनकी इंपॉर्टेंट किताब है, The Problem of Rupee. He was a
doctorate in economics. He was a highly educated man. The problem of rupee. आपने फ्लैश फ्लड सुना है कि इमीडिएटली आप क्लाउड बस्ट हो गया और फ्लड आ गया? इसी तरह फ्लैश ड्राउट भी होता है. रैपिड ऑनसेट एंड इंटेंसिफिकेशन ऑफ ड्राउट. बहुत ही क्विकली ड्राउट आएगा. सेट इन बाय लोअर देन नॉर्मल रेट्स ऑफ प्रेसिपिटेशन एंड एबनॉर्मली हाई टेम्परेचर्स. बारिश बहुत कम हो रही है लेकिन गर्मी बहुत ज्यादा है, धूप बहुत ज्यादा है, प्रेसिपिटेशन मतलब टेम्परेचर बहुत हाई है, तो सारा इवेपोरेट हो जाएगा, तो ड्राउट हो जाएगा. ये कब होता है? वार्म सीजन में होता है टिपिकली. ह्यूमिड प्लेसेस आर मोर वल्नरेबल. So we close the current affairs class here. So after 15-20 minutes we will start with the GS class. तो current affairs में किसी को कुछ डाउट है तो वो पूछ सकते हैं. Any doubts? Excuse me, sir. हाँ जी, please ask. So when will be the next test for current affairs? I had already told that. I think this will be on Sunday, March and April. Okay, sir. Sir, because one PDF was shared on the group, which consists of in March current affairs. तो उसमें 61 पेज के बाद मार्च के current affairs हैं, तो उससे पहले वाले पेजेस भी पढ़ने हैं क्या? I think आपको मार्च का ही पढ़ना चाहिए. पहले वाला I think it should be of February. अगर आपने फरवरी पढ़ा होगा तो आप एक बार से देख लीजिए उसको ना. Okay, sir. Any other doubts? Anyone? Regarding today's lecture, किसी को कुछ चीज समझ नहीं आई हो, you can ask. प्रियांशु, all clear? हाँ. सर एक मैकेनिज्म आया था सर, नेटो जो एम्प्लॉय करता है कोऑर्डिनेशन और कोऑपरेशन के लिए. सर एक नेटो प्लस इनिशिएटिव स्टार्ट हुआ था सर, वो क्या होता है सर? Yes. NATO plus क्या है कि there are certain countries like NATO का हमें पता अभी 31 members हैं, है ना? बट अभी नेटो यूएस की जो सीआई की पॉलिसी है, यूएस एडमिनिस्ट्रेशन की पॉलिसी है, जो भी नेटो मेंबर्स हैं दे वांट टू एक्सपैंड इट. ठीक है कि फॉर्मल मेंबरशिप नहीं देनी है उनको नेटो की, बट दे विल बी ब्रॉट अंडर द नेटो एम्बिट. तो उसमें क्या था कि दे आल्सो ट्राइड टू मतलब इंडिया वाज आल्सो काइंड ऑफ टॉक्ड इनटू जॉइनिंग नेटो प्लस. बट सी द प्रॉब्लम देयर इज वी एज अ कंट्री वी हैव अ वेरी वेरी इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी. तो नेटो प्लस में अगर हमारा, जैसे हमें तो इंडियन पर्सपेक्टिव से ज्यादा उसको समझने की जरूरत है. So if we kind of agreed to join the NATO plus, then our foreign policy would be hinged. It would get hyphenated to the NATO policy. तो अगर जैसे indirectly, then we would also, like, even though we are not, but we would get involved in the Ukraine war. तो इससे हमारे क्या नुकसान हो जाएंगे? सबसे पहला तो हमारी इंडिपेंडेंट वॉइस कर्व हो जाएगी. Our push for a global leadership, and particularly in the global south, that will be diminished. Secondly, we are going to antagonize Russia, which is a long weather friend. It's been a traditional friend of ours. We're going to antagonize that. Thirdly, it will also pull the strings in the China will also kind of increase its pressure tactics on the line of actual control. So there are a lot of other things. So that is why, from India's perspective, joining under NATO plus is not a very, very good diplomatic decision. That's why we chose against it. ये था थोड़ा सा NATO plus का. ओके